we will continue our discussion with fragmentation patterns in mass spectroscopy. So our last point was fragmentation pattern of benzyl alcohol. So in benzyl alcohol, there is a aromatic ring. There is an aromatic ring. Here it is saturated carbon, and here OH group, that is the alcoholic group. So it is alcohol because OH group is attached to the saturated carbon. Now here as you have already seen that in alcohols, here hydrogen is lost from here as a radical. So when it is lost, it is converted into here double bond O. So it is converted into here CH double bond OH positive. So it will appear at 107, that is M-1 peak. M-1 at 107. Now it rearranges itself and ring expansion take place, and it is converted into 7-member ring, and there is formation of this tropyliol. So in this way, it is forming here more stable tropyliol as a cation. Therefore, it is more stable. So its height is also high. You can observe here. Okay? Tropyliol is formed. Now, once it is formed, then it will lose. Here carbon monoxide minus CO. Now, after losing here this bond, so after losing carbon monoxide CO group from tropyliol, you will get a peak at 79. You are getting a peak at 79 for tropyliol loses carbon monoxide CO group, and it is converted into an anion that is called as that will appear at tropyliol loses carbon monoxide and its peak appear at M/Z79. M/Z at 79. Secondly, from cleavage of this bond between CH2 and phenyl group, there is formation of this one by migration of one hydrogen also. So this hydrogen is migrated on ortho. Already we have seen in there in case of phenol. Similar type of will take place. So that you will get a peak at 78. 78. You are getting a peak at 78. Similarly, without rearrangement, without migration of hydrogen, it is taking place. This cleavage takes place between this one. This cleavage is taking place. You will get a peak at 77. So you have to you have to keep in mind that first, after losing here proton, there is formation of tropyliol. It will appear at M-1 peak. Here it is, in this case, is at 107. Then it loses carbon monoxide, that is minus CO from tropyliol, and there is formation of appearance of a peak at 79.
So these are the two peaks. Then here on this arena, then this benzyl alcohol carbon bond breaks, and with the migration of proton from OH to hydrogen to the ortho position, then there is formation of this species with M by Z at 78, while without migration of proton hydrogen radical from oxygen to carbon, ortho carbon, you will get this group that is having here पॉजिटिव चार्ज विच विल अपीयर एट 77. सो 77 के ऊपर यहाँ पर आपको एक पीक मिलेगा. तो इस तरह से ये आपका हो गया. ये नेक्स्ट आ जाइए. अब नेक्स्ट है आपका इथर्स के ऊपर फ्रैगमेंटेशन. आपको दिखाई दे रहा सबको? जी सर. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए. फ्रैगमेंटेशन पैटर्न ऑफ ईथर्स. नाउ ईथर्स, नाउ एज यू नो ईथर इज हैविंग जनरल फार्मूला ROR. ROR is the general formula of ether. Now it can be written as RCH RCH2 O CH2 R dash, where R and R dash may be hydrogen or alkyl group. Okay, so it is the ether. Now this ether, it will show an intense molecular ion peak. इसका जो intense रहेगा, molecular ion peak will be intense. ठीक है, as compared to alcohols as well as alkanes. Comparatively, it is having intense molecular ion peak. ठीक है, अब आ जाइए. अब यहाँ पर देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है. यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो आपके पास है अल्कोहल की तरह, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू द हेटेरो आइटम विल ब्रेक. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ radical here and positive here. So there is formation of these species, this cation. So there will be loss of alkyl group. So you have to remember that here this carbon carbon bond will break and you will get this type of species where oxygen is bearing here positive charge. Now secondly, अब second point पर आ जाइए. second point, ठीक है. The second point is that here if one of the alkyl group is having secondary nature, means it is having secondary carbons, like here it is having secondary carbon. So there is secondary carbon. So this secondary carbon containing ether, it will be fragmented here with carbon oxygen bond cleavage, so that there will be formation of one cation. So you will get a peak at, so you can understand here that here there is formation of secondary carbocation. So it is more stable carbocation. So this type of cleavage, carbon oxygen cleavage, is observed when there is more stable carbocation is formed, especially secondary और tertiary. सेकेंडरी और टर्शरी के लिए आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है. ठीक है, ये पॉइंट आपको सेकंड याद रखना है इथर्स के अंदर. पहला तो क्या हो गया, आपको कार्बन कार्बन नेक्स्ट टू हेटेरो आइटम करना है. फिर नेक्स्ट उसके बाद में क्या करना है, सेकंड इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के ऊपर, उस कार्बन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर लेकर आना है. ठीक है, क्योंकि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन. ठीक है, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया. चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड है RCH2. तो आई राइट हियर H here, O C
R सिंगल बॉन्ड CH2 ऐड, ये इसको एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया हमने H, ठीक है, ये H हो गया, ठीक है। सो नाउ अगर if branching is present on alpha carbon means nature of this carbon is secondary, this carbon is alpha carbon is secondary in nature, secondary branching is present, then in that case from the unbranched carbon of the other side of oxygen, it loses hydrogen radical, it loses hydrogen minus H radical. So you will get a peak at M-1 first. You are getting a peak at M-1. Then followed by rearrangement. Then there is rearrangement will take place. So here this rearrangement is taking place. So here migration of this hydrogen will take place towards the oxygen atom, and this will be lost as an alkene. ये जो है आपका CH2CR जो है, तो ये यहाँ पर अल्कीन के फॉर्म में जो है तो यहाँ पर इलिमिनेट होगा, ये अल्कीन के फॉर्म में इलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये अल्कीन के फॉर्म में यहाँ पर इलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अल्कीन के फॉर्म में ये इलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से देखिए, अब जब आपके पास ये है तो आपको यहाँ पर एक है तो अल्कीन लॉस होगा, रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। कंडीशंस क्या क्या है आप नोट करना है। पहली कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग चाहिए, ब्रांच, ठीक है। और दूसरे अल्फा के ऊपर, अल्फा डैश के ऊपर अनब्रांच्ड है ना, अनब्रांच्ड है। then there will be rearrangement from beta carbon of branch side, branch वाले side से, from the branch side on the oxygen atom with the elimination of alkene। तो ये तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करके रखना है कि अगर यहाँ पर अल्फा ब्रांच एक साइड से है और एक तरफ से अल्फा के ऊपर है, तो यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, तो पहले हाइड्रोजन रेडिकल एलिमिनेट होगा, बाद में उसका रीअरेंजमेंट होगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस विद cation with elimination of alkene। so alkene with the help of with elimination of alkene there is formation of cation। एक बात ये ध्यान में रखनी है। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए, चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथे पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, इट इज एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर के अंदर कंपलसरी क्या है कि वन फिनाइल ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू ऑक्सीजन, ठीक है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए ऑक्सीजन को, डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप अटैच होगा, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एरोमेटिक ईथर। सो इन एरोमेटिक ईथर डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप इज अटैच्ड और एरोमेटिक ग्रुप इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से हो गया। सो इट विल फॉर्म जिस तरह से आपका फिनॉल में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन रेडिकल निकल के आपका बन रहा था, अब इसकी जगह पे क्या निकलेगा, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल। इट मींस दैट दिस बॉन्ड इज क्लीव, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी फिनॉक्सी ग्रुप, ओके, ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, so that it can be delocalized over the phenyl group or benzene ring, therefore there will be formation of this compound, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसमें से ये हो गया आपका माइनस अल्किल ग्रुप, M- alkyl, M-R, where R is the alkyl group, so you will get a peak at M-R, followed by it undergoes elimination of carbon monoxide, CO group is eliminated, so there is elimination of CO group, it is a neutral molecule, so there is formation of C5H5 positive, C5H5 positive, so it will be appearing at M/Z at 65, so at the peak will observed at 65 for aromatic ethers। एरोमेटिक ईथर्स के अंदर एक 65 के ऊपर आपको पीक मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए। अब इसके ऊपर से हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। रूल्स आपके चारों समझ में आ गए होंगे, तो ये हमारे लिए इजी जाएगा, ठीक है।
It is an example of butyl मिथिल ईथर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया आपका, अब देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर वेट पूरे में ब्यूटिल 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 मिथिल ईथर। इसके अंदर आपको वो रूल पूरे फॉलो करने हैं, याद रखने हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करना है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू द हेटेरो आइटम, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड क्लियर हो गया। इस वाले के ऊपर आपको लेना है, इस वाले के ऊपर आपको लेना है, इसके ऊपर आपको लेना है पॉजिटिव। तो इसलिए ये आपको पीक मिलेगा यहाँ पर 45 के ऊपर। हाउ व्हाई यू आर गेटिंग ए पीक, हियर इट इज CH2O, here CH3, and here it is double bond positive, so this ion is formed, cation is formed। ठीक है, सो इसके देखिए कार्बन देयर आर 2 कार्बन, C2 हो गया आपका, हाइड्रोजन आर 5 एंड 1 ऑक्सीजन। सो 12 to the 24 plus 5 for hydrogens plus 16 for oxygen, so it gives here 45। ठीक है, so you will get a peak at 45, and this peak at 45 it is a base peak, it is a base peak। ठीक है, now there are other peaks also, कौन कौन से है आपका, एक है देखिए यहाँ पर 56 के ऊपर है, 57 के ऊपर है। तो आपको उसमें से क्या करना है, अल्किल ग्रुप निकालते जाना है, और उसके बाद में आपको है तो उसमें ये करना है। ठीक है, तो ये आपको वहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिथिल वगैरह के तो हम आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका एनिसोल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक ईथर, है ना, ये एरोमेटिक ईथर। It is an example of aromatic ether, aromatic ether, aromatic ether, aromatic ether। aromatic ether, it is an example of aromatic ether। तो अब इसमें से आपको अभी अभी बताया हमने कि एरोमेटिक ईथर्स के अंदर क्या क्या करना है। इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, ठीक है, और उसके साथ साथ है तो रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो आपको है तो उसके अंदर से अलग अलग मिलेंगे। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है, यहाँ पर पहला तो ये आपको यहाँ पर ये क्लीवेज होगा A। When cleavage A is taking place, methyl group will be eliminated, so you will get a peak at M minus 15 because of loss of CH3 minus CH3 radical। Then there is loss of carbon monoxide, so after this minus CO, so you will get a peak at 65, that is minus 28, so 93 minus 28, you will get a peak at 65, you are getting a peak at 65। ठीक है, ये 65 का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आपको यहाँ पर कहाँ से मिल रहा है, B cleavage, this B cleavage is taking place, B cleavage। So phenyl group is acquiring positive charge, means here cation will be present on this phenyl group, then the peak will be observing here for C6H5 positive, so a peak will appear at 77, the peak is observed at 77, when another peak is observed here at 78, it is observed at 78, so it is because of migration of one hydrogen, rearrangement takes place on the ortho position,
and it will be having positive charge. So therefore there will be a peak is observed at 78. 78 के ऊपर क्यों मिलेगा? आपकी समझ में आ गया? ये CH3 में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा ऑर्थो हाइड्रोजन के ऊपर, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन हो जाएंगे C6H6 हो जाएंगे। यानी आपको यहाँ पर कौन सी स्पेसीज मिल रही है, यहाँ पर कौन सी स्पेसीज मिलेगी, यहाँ पर ये स्पेसीज मिलेंगे, यहाँ पर C6 हो गया ये आपका, ये हो गया आपका, उसके बाद में अब क्या हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर जो है तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पेसीज की, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, देयर इज आल्सो हाइड्रोजन and here is also hydrogen. So now it is having 6 hydrogen. So because of this group you are getting a peak at 78. ठीक है, ये हाइड्रोजन माइग्रेशन होगा, ये हमने आपको पहले रूल में बताया है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगले पॉइंट है आपका अल्डिहाइड्स के ऊपर, फ्रैगमेंटेशन पैटर्न्स ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड के अंदर आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए अपने पास दो टाइप के अल्डिहाइड्स है, एक तो एलिफेटिक है जिसके अंदर हमारे पास R ग्रुप जुड़ा हुआ है, R ग्रुप इज देयर RCHO, ठीक है, ये एलिफेटिक हो गया आपका, मीन सैचुरेटेड वाला ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ARCHO एरोमेटिक ग्रुप अगर अटैच है तो ये हो गया आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि इसका जो है आपका एलिफेटिक विल बी हैविंग लेस इंटेंस पीक, सो इट इज ए वीक पीक, ठीक है, इट इज ए वीक पीक, while peak of aromatic aldehyde is strong, the means it is an intense peak, intense peak. So you have to remember that aliphatic aldehyde will give a weak peak, means intensity will be low as compared to aromatic. Aromatic will be showing here strong peak, that is intense peak. आपको क्या याद रखना है, आपको अल्फा क्लीवेज करना है ना, पहला पॉइंट है आपको, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट। नाउ यू हैव टू क्लीवेज दिस अल्फा बॉन्ड है ना, अल्फा क्लीवेज, so it is also alpha cleavage, it is also alpha cleavage. So there are two options, एक तो क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक, that is also alpha, कार्बन कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक which is also alpha, है ना, दो तरह के यहाँ पे अल्फा बॉन्ड्स हो गए, है ना। तो अब अगर अल्फा में हाइड्रोजन रेडिकल इज गिवन, सो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर होता है हाइड्रोजन रेडिकल, सो यू विल गेट ए cation RC triple bond O positive. Okay, so because of RC triple bond O positive, you will get a peak at M-1. A peak is observed. So अगर आपके पास two compounds है, suppose कीजिए एक एसीटोन है और दूसरा एसिटाल्डिहाइड, so how you will identify with the initial observations, क्या होगा कि in acetone M-1 peak will be absent. यहाँ पर क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड के अंदर aldehyde will be having M, it is showing M-1 peak because of loss of hydrogen radical. अब दूसरा ऑप्शन is also available, this one, ठीक है, it is given out in the form of radical, R radicals, as shown here R radical, and here HCO positive, है ना, ये आपको पीक मिलेगा। सो अल्डिहाइड के लिए आपको दो चीजें याद रखना है, you have to compare with other compounds like ketone, then you have to consider, you have to remember that aldehyde and ketones, they will be differentiated by these two peaks. In aldehyde, M-1 peak is present, while in ketone it is absent. Here a peak is observed here in aldehyde at 29. This peak is present in aldehyde, while it will be absent in ketone. So peak at 29 will be absent. Okay, or it may, if it is present, it will be because of C2H5 group, ethyl group, which will be less intense. While here in aldehyde, it will be more intense at 29. ठीक है,
अल्डिहाइड के अंदर जो 29 वाला पीक में मिलेगा वो है तो आपका मोर इंटेंस रहेगा, जबकि अगर कीटोन में अगर ये मिलता भी है तो वो अल्किल ग्रुप का रहेगा, इथिल ग्रुप का रहेगा, इथिल कार्बोकैटायन का, जो यहाँ पर लेस इंटेंस रहेगा। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट के ऊपर आप चलते हैं तो वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर दो चीजें हो गई। एक तो क्या हो गया आपको कि एक है तो आपने अल्फा तो देख लिया, अब बीटा के ऊपर देखते हैं। ये बीटा के अंदर तो ये बीटा है आपका, ये अल्फा कार्बन और बीटा के बीच में जो है तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में है ना। यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में है, ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा बॉन्ड। सो बीटा क्लीवेज इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन fragmentation during the fragmentation of aldehyde. During the fragmentation of aldehyde, beta cleavage, the bond between alpha beta will also cleave. So this is a molecular ion peak. So it is a molecular ion peak. It is a molecular ion peak. So molecular ion, sorry, it is a molecular ion. So molecular ion will lead to the molecular ion peak. So this alpha beta cleavage will take place. Now you will be having here, uh, R, R, okay, R as a positive ion, that is cation. So you will get a peak here, and here this position of this one will be, the position of this R alkyl group will be M minus 41. Okay, ठीक है, M minus 41, M minus 41. It is because of this group here. This group is CH2 double bond C single bond O radical H. ठीक है, तो ये जो है तो आपको यहाँ पर इसका जो रहेगा ये 41 रहेगा। तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ दिस रेडिकल you will be getting here, you will be getting here a peak of alkyl cation with M minus 41, जबकि ये जो रहेगा यहाँ पर एसीटोन के अंदर या किसी दूसरे कीटोन्स के अंदर ये absent होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 41 के ऊपर तो पीक मिलेगा, यू विल गेट पीक एट 41, ठीक है। 41 के ऊपर पीक मिलेगा। व्हाई यू आर गेटिंग ए पीक एट 41 आल्सो? बिकॉज ड्यूरिंग द फ्रैगमेंटेशन इफ इट this group is acquiring here positive charge, this one is acquiring here positive charge, then it will be appearing at 41 and R will be lost in the form of radical. Okay, so both the options are available, but you have to remember that when alkyl is appearing here, तो M minus 41 के ऊपर आपको मिलेगा M minus 41, ठीक है। So you are getting a peak at M minus 41. मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए अल्फा बीटा गैमा है ना, अल्फा बीटा गैमा कार्बन, so it is alpha carbon, so it is an alpha carbon. ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, and therefore it is a gamma hydrogen. Gamma hydrogen is present. Already rule is known to you. It is a saturated carbon. Gamma carbon is saturated होना चाहिए, so it is a saturated one. Gamma carbon is there, so migration of this rearrangement of hydrogen radical takes place from carbon to the oxygen atom, and therefore there is loss of this group. Loss of this group will take place. Loss of this group will take place in the form of neutral alkene. So there is loss of this will take place as a neutral alkene, neutral molecule. So it will be lost, alkene will be lost as a neutral molecule. So rest of the group is having here, this one is having. So you are getting a peak at 45. You are getting a peak at 45. 45 के ऊपर आपको पीक मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है मैक-लेफर्टी की वजह से, ठीक है। तो मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट जब होगा तो उसके वजह से 44 के ऊपर आपको मिलेगा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के ऊपर। एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर नेसेसरी कंडीशन इज aromatic ring should be attached directly to the carbonyl carbon of aldehyde. Now point है aromatic aldehydes में,
अल्फा क्लीवेज जैसे हमने कहा है अल्फा क्लीवेज होगा, तो अल्फा क्लीवेज यहाँ पर आपको है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्लीवेज के दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो यहाँ पर है, ये दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से दो क्लीवेज ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें अगर होता है तो देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल, सो यू आर गेटिंग ए पीक एट m-1, m-1, ठीक है। m-1 से आगे अगर यहाँ से तो यहाँ पर निकलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट होने से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव, so you will be getting a peak at 77, so you are getting a peak at 77, ठीक है। तो इस तरह से ये 77 के ऊपर भी पीक मिलेगा आफ्टर लॉस ऑफ CO ग्रुप, CO ग्रुप की वजह से ये आपको मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप डायरेक्टली लेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो देयर इज लॉस ऑफ, वही हो रहा है ना, पहला आपका हाइड्रोजन रेडिकल निकला था, बाद में कार्बोनिल निकला है, CO ग्रुप निकला है, तो टोटल मिलाकर आपका क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यही ग्रुप निकल गया, मतलब आपका निकल गया HCO ग्रुप रेडिकल, एंड दिस फिनिल ग्रुप इज हैविंग पॉजिटिव charge, so it is formed a cation, so it will be appearing at 77, so it appears at 77. अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, कि ये जो हमने कंसीडर किया है एरोमेटिक रिंग, इट डज नॉट हैव एनी अल्किल ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट या सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तो उसके अंदर है, तो आपको वो हिसाब से एडिशन करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन की जगह पर आपको अल्किल ग्रुप है, जैसे अगर आपका यहाँ पर R ग्रुप है, ठीक है, R के अंदर यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर CH3 ग्रुप अगर अटैच है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको CH3 मिलेगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ये 77 -1 बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 15 फॉर मिथिल ग्रुप, so overall there will be addition of 14, okay, so you will be getting a peak at 91, okay, so in this way you will be getting a peak at 91, okay, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए, वो है हमारा यहाँ पर एलिफेटिक की एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब पहली एग्जाम्पल हमने जो ली है वो है यहाँ पर पेंटेनल की है, पेंटेनल, सो पेंटेनल ये एलिफेटिक कंपाउंड से, एल्डिहाइड से, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अब देखिए पेंटेनल आपको पता है CH3 CH2 एंड हेयर CHO, ठीक है। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक, सो इट विल बी मॉलिक्यूलर आयन पीक रेडिकल आयन, इट विल बी अपीयरिंग एट 86, ठीक है। नाउ यहाँ पे अल्डिहाइड है, सो अल्डिहाइड में से आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देते, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल इज लॉस्ट, हाइड्रोजन रेडिकल -H रेडिकल, सो यू विल गेट हियर ए पीक एट 85 के ऊपर आपको एक पीक मिल गया, ठीक है। अब आ जाइए अगले पॉइंट के ऊपर, आपको कहाँ पर देखिए बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पर ये फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ना, ये भी फ्रैगमेंट्स इतने सारे बन, ये देखिए इतने सारे फ्रैगमेंट बन रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बन रहे हैं, यहाँ पर भी फ्रैगमेंट बन रहे हैं। हमको क्या करना है, इसमें से फ्रैगमेंट्स में से मोर प्रोमिनेंट पीक्स आर टू बी एलोकेटेड, है ना, उसमें से मोर जो प्रोमिनेंट पीक्स है हमको उसी के बारे में तो यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। आपको ध्यान में ये रखना है मोर प्रोमिनेंट पीक्स है, ठीक है, बहुत सारे पीक्स वहां पर बनेंगे, लेकिन अपने को उसके ऊपर से मेजर पीक्स जो है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, हर एक पीक को हमको बताना नहीं है, ठीक है। तो आप कौन से मेजर पीक के अंदर आपको बताया अभी, जैसे हमने कि यहाँ पर से क्या हो गया, ये बॉन्ड क्लीव हो रहा, तो यहाँ वाले के ऊपर आपको 29 के ऊपर मिलेगा, आपको बताए थे हमने कि you will get a peak at 29. See here the intensity, it is near about 50%, it is 50%, near about 50%, है ना।
So intensity is 50% for peak at 29. Intense peak है, ठीक है. इसका मतलब यह है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इथिल कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बोकटायन इथिल कार्बोकटायन रहता तो उसकी हाइट कम रहती. यहाँ पर हाइट ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टेबल है. इट इज हैविंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी. ठीक है, तो ये एक हो गया आपका. अब इसके बाद में आपको यहाँ पर बताया हमने 44 के ऊपर एक पीक है, 44 के ऊपर एक पीक है. दिस पीक इज फ्रॉम बिकॉज ऑफ द मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट. मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट, ये मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट हो रहा है. ठीक है, तो अब आपके पास देखिए ये जो है आपके पास ये जो ग्रुप है ये आपको लॉस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ alkene. So there is formation of this alkene, elimination of this alkene. So you will be getting a peak at 44. So it is there. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 44 के ऊपर एक पीक मिलेगा. तो ये हमारे प्रोमिनेंट पीक्स थे. अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के ऊपर. तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये है टोल्यूएल्डिहाइड. टोल्यूएल्डिहाइड में मेटा ऑर्थो मेटा पैरा ऐसे तीन रहते हैं. तो ये है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेयर CHO and here CH3. Okay, so it is tolualdehyde, metatolualdehyde. In this compound, सबसे पहले इसका जो हमको मिलेगा molecular ion peak. So you will get a molecular ion peak of this one at 120. So it will be appearing at 120, M by Z at 120. Since here it is aldehyde, so M minus 1. So you will be getting another peak at M minus 1. So you will be getting at 119. So you are getting here 119. Okay. Now, second, next point is that here this aldehyde is cleaved. As shown here, this aldehyde is cleaved, and this remaining group is here. It is having positive charge. So you are having this type of species here. Double bond, here CH3, and here it is positive. So it is positive. Okay. So because of this, you are getting a peak at 91. So a peak will be observed at 91, and it will rearrange to form here. And secondly, it is having more resonating structure, therefore it is more stable. So there is formation of प्रोटीलियम आयन. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, आपकी इसकी इंटेंसिटी जो है यहाँ पर ये 100% है ना. ये हो गया आपका बेस पीक. सो यू विल बी हैविंग ए बेस पीक एट 91. ठीक है, इस तरह से आपको, तो ये हो गया माइनस लॉस ऑफ 29. ओके, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव रेडिकल है तो ये निकल गए यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर हो गया आपका. ठीक है, अब आ जाइए कीटोन के ऊपर. नेक्स्ट क्लास इज कीटोन का है, तो फ्रेगमेंटेशन अब हमको यहाँ पर देखना है कीटोन का. ठीक है, कीटोन के अंदर आपको याद रखना है कि कीटोन का जो M प्लस पीक रहेगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक फॉर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स, ये दोनों का भी है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा. दैट विल बी मोर इंटेंस. ठीक है, सो इट इज बोथ. यहाँ पर aliphatic and aromatic both will be having intense peak. Means their height will be more as compared to aliphatic. यहाँ पर है तो देखिए एक बात ध्यान में रखनी है. क्या बात ध्यान में रखनी है कि एलिफेटिक अल्डिहाइड में कम था, एरोमेटिक अल्डिहाइड में हाइट ज्यादा थी, इंटेंसिटी ज्यादा थी. यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन में भी हाइट ज्यादा है, एलिफेटिक में. तो आपको अगर डिफरेंशिएट करना है बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एक और एक पॉइंट हो गया कि वहां पर एलिफेटिक अल्डिहाइड की इंटेंसिटी कम है, while aliphatic ketones they are more intense peak, giving more intense molecular ion peak, है ना. तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हो गया इसके अंदर. अब चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज which is possible, they are more prominent is here. It is the first point. In this, alpha cleavage is taking place, R और R dash. ठीक है, अब R and R dash. ठीक है, नाउ R और R dash,
if they may be similar or may be different. If they are similar, there is no problem because R and R, they will be similar. Either alkyl group will be lost as a radical, so you will be getting a peak of M minus R. ठीक है, M minus R. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. तो अब ये R क्या रहेगा? R ही अगर रहा CH3, तो you will get a peak at M minus 50. M minus 50. If it is a ethyl group, for ethyl group loss, you will be getting a peak at M minus 29. You will be getting a peak at M minus 29. Here it is M51. ठीक है. और उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आइसोप्रोपिल ग्रुप रहा तो उसका आपको है तो M माइनस यहाँ पर 43. तो इस तरह से तो आपको आइसोप्रोपिल एन प्रोपिल के लिए ये माइनस करना है. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. नाउ एक बात और एक बात ध्यान में रखनी है. इफ R and R dash, they are different. One is a smaller alkyl group, another one is a larger group. It is a bigger group. Suppose R is small. R is small alkyl group. Means it is having less number of carbon, less carbon. While R dash or R1 is bigger one, so it is a larger alkyl group. Larger group. Then in that condition, the more bulkier group or heavy group or larger alkyl group, it will be more often ये ज्यादातर ये तो यहाँ पर लॉस होगा, ये लॉस्ट होगा. More alkyl group will be lost. More alkyl group will be lost. Okay, out of these two, more often bigger alkyl group will be lost. ये बात आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. Now, point आपके समझ में आ गया है? Are you understanding this point? If two alkyl groups are not similar, in that condition, more bigger group will be lost as a alkyl radical more often. यानी ज्यादातर, मैक्सिमम टाइप है ना. तो एक बात आपको ध्यान में रखना है. सो वहां पर आपको दोनों में से एक चीज याद रखनी है. चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट, बीटा क्लीवेज. जैसे हमने अल्डिहाइड में किया था उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे आप अल्डिहाइड के अंदर. ठीक है, ये अल्फा बीटा कार्बन के बीच वाला जो है, अल्फा बीटा वाले के बीच वाला जो है वो यहाँ पे क्लीव करेंगे. तो अब यहाँ पर ये जो बनेगा तो ये अल्किल आपका जो रहेगा अल्किल कटायन. सो अल्किल कटायंस विल बी ऑब्जर्व देयर. अब यहाँ पर देखिए R1 जो है, ठीक है. अब है तो अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है इट इज लॉस्ट है ना, ये जो लॉस्ट हो रहा है यहाँ पर ये ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, ये रेडिकल के फॉर्म में. अब यहाँ पे इट इज नॉट फिक्स्ड, R1 is not fixed, means it may be CH3, maybe C2H5, so it will vary. तो इसलिए हमारे को यहाँ पे less important as compared to aldehyde. It is this fragment, this loss of radical is less important because here it depends on the alkyl group, nature of alkyl group. If alkyl group is CH3, then different value is there. If C2H5 is there, then another value is there. So that should be subtracted from the molecular ion peak. But in aldehyde, it was fixed. It was fixed. That is 29. Is it clear? समझ में आ रहा था क्या यार? समझ में आ रहा है कि aldehyde के अंदर क्या करना है? ये फिक्स है यहाँ पे वैल्यू, है ना. ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर इसके अंदर, ये जो था aldehyde के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर ये था यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रेडिकल H, ये फिक्स, इट वाज हैविंग फिक्स वैल्यू. सो M minus 29 that was fixed, but it is not fixed here because it may be R1 may be CH3, it may be C2H5, it may be here
C3H7 etc. So depending upon that, that should be fragment should be subtracted from the molecular ion P. तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया क्या? कोई डिफिकल्टी है? चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर, ये है मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट conditions are known to you. What are the conditions? Gamma hydrogen should be there. That gamma hydrogen should be present on the saturated carbon होना चाहिए, ठीक है ना? यही पॉइंट यहाँ पर भी है। तो अब ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी अल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी है, तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी अगर अल्फा गामा कार्बन गामा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, then it may undergo Mac-Lafferty rearrangement. It will be giving here Mac-Lafferty rearranged product. So ये it is यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है? अब ये जो है तो आपको यहाँ पे अल्कीन विल बी लॉस्ट, सो इट इज लूजिंग हियर अल्कीन. अल्कीन विल इज लॉस्ट हियर, दिस इज लॉस्ट एज ए अल्कीन and this hydrogen is migrating to the oxygen atom, ठीक है? तो इस तरह से आपको है तो आपको यहाँ पर एक है तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है. कंडीशन है गैमा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है? ठीक है, हाँ. अब अगर सपोज कीजिए कि ये R1 और R2 दोनों साइड में है तो यहाँ पर गैमा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है? रीअरेंजमेंट दोनों साइड के ऊपर होगा, आपको ये ध्यान में रखना है, दोनों साइड में होगा. क्यों? इधर भी गैमा हाइड्रोजन है, इधर भी गैमा हाइड्रोजन है, तो आपको याद रखना है कि दोनों साइड में आपका रीअरेंजमेंट होगा. तो यू विल गेट टू rearranged product. Okay, Mac-Lafferty rearranged product will be formed. Two will be formed. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है. इसमें कोई डिफिकल्टी है? चलिए फिर अगले पॉइंट पर आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरोमेटिक कीटोन्स के ऊपर. एरोमेटिक कीटोन्स के ऊपर, अब एरोमेटिक कीटोन्स के ऊपर क्या है आपको देखिए, ये एक है आपका अल्फा बॉन्ड है, ये एक अल्फा बॉन्ड है ना, ये एक अल्फा बॉन्ड है, ये अल्फा है तो इसको हम ए नाम देते हैं, ये इसको हम बोलते हैं बी देते हैं, ठीक है? तो ए अगर यहाँ पर क्लीव होता है तो alkyl group will be lost as a radical, alkyl group will be lost as a radical, and you will be getting a peak at 105. You are getting a peak at 105. M by Z at 105 के ऊपर आपको एक पीक मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना. अब इसमें से अगर हमने CO माइनस कर दिए, CO माइनस कर दिए, तो आफ्टर CO माइनस करने के बाद में आपको कहां पर मिलेगा? -28 करना है. 105 minus 105 105 105 minus 28 for CO group, for CO minus 28 lost as a, ये आपको यहाँ से निकल गया, it is coming out, है ना? और positive will be acquired on phenyl group. So you will be getting a peak at 77. You are getting a peak at 77. Now, once again, this example is shown without any substituent on benzene ring. Benzene ring के ऊपर कोई substituent नहीं है. तो अगर यहाँ पर substituent अगर present है, जैसे CH3 ग्रुप अगर present है, यहाँ पर suppose यहाँ पर अगर आपका CH3 ग्रुप present है, तो आपके इसके अंदर भी यहाँ पर CH3 ग्रुप present आएगा. तो इसलिए अब इसका कितना हो जाएगा? 77 minus 1 मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम रहेगा, इट विल बी C6H4 रहेगा, तो इसलिए हो गया -1, ठीक है? मतलब 76 हो गया, 76 plus 15, सो इट इज गिविंग हियर कितना हो गया? आप कैलकुलेट कर दीजिए, आप कितने हो रहा? 91 हो गया क्या? तो 91 के ऊपर आपको एक पीक मिलेगा. यू विल बी गेटिंग ए पीक एट 91, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर सपोज करते हैं कि आपके पास सपोज कीजिए कि C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो C2H5 के लिए आपको पीक कहां पर मिलेगा? उसके अंदर 14 ऐड कर दीजिए, 14 ओवरऑल 14 ऐड कर दीजिए, और कितना हो गया? 91 plus 14, that is 105. You are getting a peak at 105, ठीक है? So depending upon this substituent on this ring, you will be getting a peak, ठीक है? So it is not compulsory. It is not compulsory that you are getting here
this peak at 77. That depends on the substituent. If only hydrogens are attached, then there will be peak at 77. If any alkyl group is there, then subsequently you have to add the atomic weight in that mass number to this fragment. Okay, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए, अब साइक्लिक कीटोन्स के ऊपर आ जाइए। एरोमेटिक तो हो गया था, आप साइक्लिक कीटोन में आ जाइए। तो साइक्लिक कीटोन के अंदर क्या है, आपको एक बात आपको याद रखना है कि साइक्लिक कीटोन के अंदर रूल्स उसी तरह से ऐड करने हैं, थोड़े से उसके अंदर मॉडिफिकेशन मामूली रहेगा। तो पहला काम क्या किया हमने कि पहला हमने यहाँ किया कि कार्बन, ये जो है यहाँ पर ये अल्फा बॉन्ड ब्रेक किया है, कीटोन में किया ना हमने, अल्डिहाइड में भी किए थे, वहां पर भी ये किया है। तो ये बॉन्ड क्लीव हो गया। जब ये बॉन्ड क्लीव हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल बन जाएगा और इस साइड में आपका C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन रेडिकल इट विल माइग्रेट टू दिस पोजीशन, तो ये माइग्रेट हो गया, तो ये यू विल बी गेटिंग दिस कटायन, रेडिकल आयन, ठीक है, रेडिकल आयन इस फॉर्म हो गया। अब इसमें के बाद में क्या हो जाएगा इसके अंदर से, अब ये जो है यहाँ पर आपका जो है तो आपका रेडिकल से आपका जो है तो रेडिकल आयन से ये है तो फ्रैगमेंटेशन होगा। तो अब फ्रैगमेंटेशन कहाँ से होगा, अब आप याद रखिए, ठीक है। अब ध्यान में रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गैमा कार्बन है। तो आपको ब्रेक करना है बिटवीन बीटा एंड गैमा कार्बन, यू हैव टू ब्रेक बिटवीन बीटा एंड गैमा। सो ये अल्फा बीटा, गैमा इधर आ गया है, गैमा, ये डेल्टा टीटा वगैरह जो भी है वो यहाँ पर, ये अल्किल रेडिकल है, इट इज अल्किल रेडिकल, अल्किल रेडिकल। So you will be getting a peak at 55. You are getting a peak at 55. आपका है तो यहाँ पे 55 के ऊपर पीक मिलना चाहिए, आपको पीक मिलना चाहिए 55 के ऊपर, ठीक है। अब जैसे अगर ये रीअरेंजमेंट यहाँ पर माइग्रेशन नहीं हो रहा हाइड्रोजन का, इफ हाइड्रोजन इज नॉट माइग्रेटिंग, तो आपका सेकेंड मैकेनिज्म यहाँ पर ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया था, ये आपका हो गया था ये फर्स्ट वाला मेथड, जिसके अंदर देयर इज माइग्रेशन ऑफ radical hydrogen radical from another alpha position to the first position, first alpha carbon। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, there is no shifting of this hydrogen radical, इसमें रेडिकल नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, इधर वाला जो ग्रुप रहेगा जिधर पहले फ्री रेडिकल बना उसका अल्कीन एलिमिनेट होगा, सो अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल आयंस, ठीक है, ये रेडिकल आयन बनेगा। तो यू विल गेट ए पीक एट M/Z एट 70। So you are getting a peak at 70 के ऊपर आपको बनेगा, ठीक है। तो 70 के ऊपर आपको पीक मिलेगा। तो अब साइक्लिक कीटोन में क्या हो गया, आपका एक पीक कहाँ पर है, स्पेशल आपको याद रखना है कहाँ पर है, एक तो आपका हो गया 55 के ऊपर एक पीक हो गया आपको, दूसरा पीक कहाँ पर हो गया 70 हो गया। अब 70 वाले में से अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एलिमिनेट कर देते हैं, ये यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है, ये ग्रुप को CO ग्रुप को एलिमिनेट करते हैं, तो ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन चले गए इस साइड में, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव आ गया तो ये आपका बन गया यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर कितने पर मिलेगा, ये आपको ये मिल जाएगा आपको 42 के ऊपर। तो आपको है तो साइक्लिक कीटोन जब रहेगा, साइक्लिक कीटोन के अंदर यू विल गेट अनदर पीक एट 42। तो आपको कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, 55, 70 और 42, ये कहाँ पर हो गया आपको साइक्लिक कीटोन के अंदर, साइक्लिक कीटोन के अंदर ये तो आपको पीक्स मिलेंगे, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने में हमारे को सहूलत करेगा। अब ये देखिए आपके पास कंपाउंड है 2-पेंटेनोन, ठीक है, 2-पेंटेनोन। तो अब देखिए आपको जो है तो एक पीक है तो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगा साइक्लोपेंटेनोन का, ठीक है, टू पेंटेनोन का डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये साइक्लोपेंटेनोन का। तो इसका है तो मॉलिक्यूलर आयन पीक विल बी ऑब्जर्व्ड एट हियर 86, the peak at 86, see here it is more intense, intensity is high, है ना, आपको क्लियर पीक दिखाई दे रहा है, नियर अबाउट 20% तक उसकी इंटेंसिटी है ना। रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी है, 20% के करीब है, आपको क्लियर 86 वाला पीक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास ये एक अल्फा है, तो इसको हम लेते हैं ए, है ना, ये यहाँ पर ए नाम दे दिया हमने, ये ए नाम दे दिया ए वाला। तो इधर वाला जब निकलेगा तो रेडिकल के फॉर्म में, तो -CH3 रेडिकल, तो आपको है तो M-15 के ऊपर पीक मिलेगा। यू आर गेटिंग ए पीक एट M-15, ये आपको M-15 बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ CH3 रेडिकल माइनस CH3 रेडिकल। कहाँ से निकला ये ए वाले ऑप्शन से, है ना, ये ए वाले ऑप्शन से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपको यहाँ पर देखिए, ये है अल्फा कार्बन, ये आपका ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गैमा कार्बन है। इट इज हैविंग सैचुरेटेड कार्बन, so hydrogen is there. McLafferty rearrangement will take place. So after McLafferty rearrangement, you will be getting a peak at 58. You are getting a peak at 58 because of this radical ion. It is a McLafferty rearranged product, है ना, rearranged cation, radical ion, ठीक है। ये रेडिकल आयन बनने की वजह से यहाँ पर आपका ये मैक्लेफर्टी, तो ये मैक्लेफर्टी rearranged product, rearranged, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी अल्फा पोजिशन है, ये इट इज ऑल्सो अल्फा पोजिशन, सो इट इज अल्फा। सो आप इसको बोलेंगे बी टाइप का क्लीवेज बोल दिया आप, तो इधर वाले के ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन वाले के ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O एयर पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव बन गया आपका, ठीक है। तो इसका जो है तो CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन पे दे दीजिए आप पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ से हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, इसका है तो पीक मिलेगा आपको 43 के ऊपर। कार्बन 2 हो गया, इसके अंदर 2 कार्बन आर देयर, 3 हाइड्रोजन आर देयर, 12 + 12 24 + 3 27 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के मिला दीजिए उसके अंदर 16, ये हो गया आपके 43। इस तरह से टोटल 43 है, तो यू आर गेटिंग ए पीक एट 43 के ऊपर भी आपको एक पीक मिलेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, फ्रैगमेंटेशन समझ में आ गया। नाउ अगेन आई एम emphasizing here that this there are formation of other peaks also। ये देखिए यहाँ पर भी आपको पीक मिल रहे बहुत सारे, ये पीक मिल रहे, ये पीक्स और भी मिल रहे आपको। तो अब ये पीक्स क्यों बन रहे हैं आप इसको देखते चलिए, अलग अलग फ्रैगमेंट कर रही है, लेकिन ये जो है तो आपको मोर प्रोमिनेंट नहीं है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स में बन सकते हैं, लेकिन ये जो हमने बताए हैं दीज आर द प्रोमिनेंट पीक्स, ठीक है। ये प्रोमिनेंट फ्रैगमेंट्स है, इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स है, अदरवाइज अदर फ्रैगमेंट्स आर आल्सो फॉर्म। इज इट क्लियर? चलिए अगले एग्जांपल पर आ जाते हैं। अगले एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, ये है आपकी एरोमेटिक कीटोन की, एरोमेटिक कीटोन की है। क्या नाम देना है इसका, एक तो फिनिल हो गया, एक तरफ से इथिल हो गया, है ना। तो इसका इथिल फिनिल कीटोन भी हो गया। इसको आप है तो बोलिए प्रोपियोफिनोन भी बोल सकते हैं, प्रोपियोफिनोन, जैसा एसिटोफिनोन है उसी तरह से प्रोपियोफिनोन, ठीक है ना। 3 कार्बन है यहाँ पर प्रोपियोफिनोन, ये 3 कार्बन है, ये एक 2 और 3 कार्बन है ना, ओपन चेन के अंदर। तो इसलिए इसको आप है तो प्रोपियो भी बोलेंगे, 3 कार्बन से प्रोपियोफिनोन, ठीक है। तो अब ये बाकी नॉमेनक्लेचर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसका जो रेडिकल आयन मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगा, तो मॉलिक्यूलर आयन पीक का जो अगर कैलकुलेट करेंगे पूरे मासेस, तो यू विल गेट ए मॉलिक्यूलर mass as 134, so you are getting a peak at 144, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये एक बॉन्ड क्लीव करना है। ये बॉन्ड अगर क्लीव करते हैं तो -29 हो गए आपके, ठीक है। आपका इथिल ग्रुप लॉस हो गया तो -29 हो गया, तो आप उसमें से 29 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 29 माइनस करने के बाद में 105 के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। 105 के ऊपर पीक मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पर देखिए, ये बॉन्ड अगर क्लीव करते हैं बी टाइप का, ये बॉन्ड क्लीव करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया।
B cleavage से you are getting here this type of species, this type of species positive, है ना? इसका 77 के ऊपर मिलेगा आपको, यू आर गेटिंग ए पीक एट 77, ठीक है, ये 77 बन गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में क्या हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, 77 के ऊपर। अब उसकी तरह से तो अगर आपका इथिल के ऊपर इथिल ग्रुप है तो रेडिकल के फॉर्म में जाने की बजाय अगर कार्बोकैटायन के फॉर्म, इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म, इंस्टेड ऑफ losing ethyl as a radical, if there is formation of carbocation, then in that condition you will be getting a peak at 29। तो यहाँ पर शायद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको 29 के आसपास भी पीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग पीक्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोमिनेंट पीक्स आपके समझ में आ गए कि इसके अंदर प्रोमिनेंट पीक्स कौन कौन से है। चलिए अगले कंपाउंड की तरफ आप जाएंगे तो वो रहेगा हमारा अगला कंपाउंड जो रहेगा वो स्ट्रेस रहेगा। We will see it in our next discussion.